Hello, good morning, student. So today we are going to discuss the next topic from the chapter what we have left in the previous video. So pastoralism in Africa. So let's see how the pastoralist lives in Africa. Let us move to Africa, where over a half the world's pastoral population lives. Even today, the over 22 million Africans depend on some form of the pastoral activity for their livelihood. They include communities like Bedouins, Berbers, Maasai, Somali, Boron, and the Turkana. Most of them now live in the semi-arid grasslands or the arid desert where rain-fed agriculture is difficult. They raise the cattle, camel, goat, sheep, and the donkeys, and they sell milk, meat, animal skin, and the wool. Some also earn through trade and transport. Others combine the pastoral activity with the agriculture. Still others do a variety of odd jobs to supplement their merge and certain earnings for the pastoralism. अब देखिए यहाँ पे जो है पेस्ट्रोलिज्म अफ्रीका के बारे में बताया गया है। मतलब वहाँ के जो बंजारे थे या जिन्हें हम खाना मतलब शरबाए कह रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी लाइफ किस तरह की थी, उनमें क्या क्या जो है कास्ट के लोग हैं, जैसे उनमें भी अपनी कई सारी कम्युनिटीज़ हैं जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जैसे बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बरान। और फिर ये किस तरह का काम करते हैं जिससे ये अपना बेसिकली अपना पालन पोषण करते हैं, तो उनकी काम और उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैरा. Like the pastoralists in India, the lives of Africa, pastoralists have changed dramatically over the colonial and the post-colonial period. What have these changes been? अब देखिए चेंजेस क्या हुए थे, किस तरह के हुए थे, वो चेंजेस हमें अब यहाँ पे देखना है. We will discuss some of these changes by looking at the pastoral community, the Maasai. In some detail, the Maasai cattle herder live primarily in East Africa, 3 lakh in southern Kenya and another 1,50,000 in Tanzania. We will see how new laws and the regulations took away their land and restricted their movement. This affected their lives in times of a drought and even reshaped their social relationship. अब ये देखना है कि वो किस तरह से उनका काम करते हैं, उनकी टोटल पॉपुलेशन क्या थी, नए रूल्स एंड रेगुलेशन आने के बाद उनका जो मूवमेंट है वो किस तरह से अफेक्ट हुआ, उनकी लाइफ किस तरह से अफेक्ट हुई, ये सारी चीज़ें जो है अब हम यहाँ देखेंगे. वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गॉन. जो भी उनकी ग्रेजिंग लैंड्स थे वो कहाँ चले गए, वो अब देखा जाएगा यहाँ पे. वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द मसाई हैव फेस्ड इन द कंटिन्यूस लॉस ऑफ देयर ग्रेजिंग लैंड बिफोर द कॉलोनियल टाइम. द मसाई लैंड स्ट्रेच्ड ओवर अ वास्ट एरिया फ्रॉम नॉर्थ केन्या टू द steppe of the northern Tanzania. In the late 19th century, the European imperial power scrambled for the territorial possessions in Africa, slicing up the region into different colonies. In 1885, the Maasai land was cut into half with an international boundary between British Kenya and the German Tanzania. Subsequently, the best grazing lands were gradually taken over by the white settlement and the Maasai were pushed into a small area in the. हम देखिए क्या हो गया, कई सारे जो चेंजेस हुए, तो मसाई लैंड जो था, जो जहाँ पे भी ये रहते थे, जितना बड़ा एरिया इनका था वहाँ से इनको हटाया गया. तो कई जगहों पे जाके इनको एक छोटा सा एरिया दे गया, वहाँ पे इनको पुश किया गया कि आप वहीं जाएं और वहीं रहें. तो कई तरह की चेंजेस जो है कॉलोनियल रूल आने के बाद इनकी लाइफ में हुई, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया. द साउथ केन्या एंड द नॉर्थ तंजानिया द मसाई आर अबाउट 60%. और जो साउथ केन्या और तंजानिया का एरिया था, वहाँ पे ये लोग करीबन 60% एरिया पे रहते थे. पर ऑफ देयर प्री कॉलोनियल लैंड्स दे वर कन्फाइंड टू अरेड अ जोन ऑफ अनसर्टेन रेनफॉल एंड द पुअर पास्चर. लेकिन कहीं ना कहीं उनको वहाँ से हटना पड़ा, क्योंकि जो है वो एराइड जोन था, मतलब सूखा वहाँ पड़ सकता था, और जो भी अनसर्टेन वहाँ का रेनफॉल था, और जो भी वहाँ पे खाने की पीने की चीज़ें थी वो काफ़ी पुअर थी. From the late 19th century, the British colonial government in East Africa also encouraged a local peasant community to expand a cultivation. As cultivation expanded, the pastoral lands were turned into a cultivated field. In pre-colonial times, the Maasai pastoralists had dominated their agricultural neighbors both economically and politically. By the end of the colonial rule, the situation has reversed. अब ये लोग जो थे जहाँ पे भी रहते थे वहाँ पे किसी तरह से जो भी है अपना एग्रीकल्चर करके या थोड़ा बहुत कल्टीवेशन करके अपने खाने पीने की चीज़ें और अपने जानवरों के लिए जो है पैस्चर वो तैयार कर लेते थे. लेकिन कॉलोनियल रूल आने के बाद जो है ये सारी सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई. लार्ज एरिया ऑफ ग्रेजिंग लैंड वर ऑल्सो टर्न इनटू अ
game reserves like Masai Mara and the Sambu National Park in Kenya and the Shinigeti Park in the Tanzania. Pastoralists were not allowed to enter these reserves. They could neither hunt animal nor graze their herds in this area. Very often, these rivers were in the areas that had traditionally been regular grazing grounds for Maasai herds. The Serengeti National Park, for instance, was created over a 14,760 kilometer of a Maasai grazing land. अब देखिए यहाँ पे जो इनका कई हिस्सा तो जो था जहाँ पे ये रहते थे उनको एज अ रिज़र्व कैटेगरी में डाल दिया गया और कई जगहों पे ऐसे जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्क बन गए। तो इस तरह से इनका काफ़ी सारा हिस्सा जो है बेसिकली जो इनका ग्रेजिंग लैंड था वो उनसे छीन लिया गया। अब देखिए ये यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई गई है जिसके बारे में आपको वर्ड द मसाई का मतलब पता चलेगा। यहाँ पे कई सारे चरवाहे जो हैं देखिए बैठे हैं, वो जानवरों को जो पाल रहे हैं, हर्डर्स बेसिकली, उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बोला क्या गया है। जो मेन मेरा एम है आपको इस इमेज को दिखाने का वो ये है कि मसाई जो वर्ड है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो किस तरह से इन्वेंट हुआ है। चलिए देखते हैं। द टाइटल मसाई डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड मा and Maasai means the My people. The Maasai are traditionally nomadic and the pastoral people who depend on milk and meat for subsistence. High temperatures combine with a low rainfall to create a condition which are dry, dusty and extremely hot. Tough conditions are common in the semi-arid land of the equatorial heat. During such times, pastoral animals die in the large numbers. अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि किस तरह से जो है जानवर मर जाते हैं इस तरह की जो है वेदर की कंडीशन पे। Now we see the loss of the finest grazing land and the water resources created pressure on the small area of the land that Maasai were confined within. Continuous grazing within small। अब यहाँ पे इनके बारे में ये बताया कि जो इनका एरिया था जो ले लिया गया जिसमें कई सारे इनके जीने के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जो वाटर लैंड था, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से इनसे ले ली गई और उसके साथ जो इनके कैटल्स थे इनको पालना इनके लिए कितना मुश्किल होता चला गया। The borders are closed. In the 19th century, the African pastoralists could move over a vast area in search of pastures. When the pastures were exhausted in one place, they moved to the different area to graze their cattle. From the late 19th century, the colonial government began imposing a various restrictions on their mobility, like the Maasai and other pastoral groups were also forced to live within the confines of the special reserves. The boundaries of these reserves became the limits within which they could now move. They were not allowed to move out with their stock without special permit, and it was difficult to get permit without trouble and harassment. Those found guilty of disobeying the rules were severely punished. Pastoralists were also not allowed to enter the markets in the white area. In many regions, they were prohibited from participating in any form of trade. White settlers and European colonists saw the pastoralists as dangerous and savage, people with whom the contact had to be minimized. Cutting off all the links was, however, never really possible because white colonists had to be dependent on the black labor for the bore mines and the build road and towns. अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया है बॉर्डर्स आर क्लोज, तो ये बताया गया है कि जो 19th सेंचुरी का टाइम था उस टाइम पे जो अफ्रीकन पैस्टोरलिस्ट थी उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया। मतलब वो जो है जहाँ पे नॉर्मल लोग जाके वहाँ पे सामान खरीद सकते वहाँ ये जा नहीं सकते थे। नॉर्मल लोगों से उनको दूरी बनाए के रखनी होती थी एंड जो वाइट पीपल्स थे इन पर कई तरह के जो भी रूल लगाए गए, जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, अगर ये उनका पालन नहीं करते तो उनमें जो है बहुत कड़ी पनिशमेंट दी जाती थी। तो इस तरह से जो है काफ़ी सारी हरासमेंट, कई सारी प्रॉब्लम्स जो है इन्होंने फेस की और ये जो है कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी। इसके साथ साथ जो है वाइट लोग इनका इस्तेमाल भी बोर माइन खोदने के लिए या किसी और दूसरे काम को करने के लिए करते थे, जैसे कि रोड बनाना है, टाउन बनाना है, तो इन सारी जगहों पे इनका इस्तेमाल होता था, लेकिन इन्हें वो इज़्ज़त और उस तरह का रहन सहन नहीं दिया जाता था। नाउ व्हेन पास्चर्स ड्राई, तो अब देखिए यहाँ ये जो कंडीशन बताई गई है यहाँ पे ये बताई गई है कि जब भी जो खाने पीने की चीज़ें होती थी जो अगर सूख गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, ख़त्म हो गई, तो उसके बाद जो है पैस्टोरलिस्ट करते क्या थे, वो एक जगह से फिर दूसरी जगह मूव हो जाते थे। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन आई जस्ट रीड दिस पैराग्राफ बिकॉज देयर इज़ एन इंक्वायरी एंड देयर इज़ सम नंबर्स विच इज़ सेड अबाउट द वाइल्ड लाइफ।
Not all were equally affected. In Masai land as well as elsewhere in Africa, the elders formed the ruling group and met in periodic council to decide on the affairs of the community and the settle disputes. The warrior consisted of the younger people and the mainly responsible for the protection of the tribe. They defend the community and organize the cattle raids. Breeding was important in a society where cattle was wealth. It is through the raids that the power of the different pastoral groups was arrested. Young men came to be recognized as the members of the warrior class when they proved their manliness by raiding the cattle of the other pastoral group and the participating in wars. They, however, were subject to the authority of the elders. अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई है वो ये इस बारे में बताया गया कि सारे जो थे वो इक्वल नहीं थे। उनके अंदर उनमें जो थे कुछ लोग ऐसे होते थे जैसे जो काफ़ी बड़ा है, एजेड पर्सन है, उसे एज ए एल्डर ट्रीट किया जाता था और उन्हें एल्डर की उपाधि जो है वो दी जाती थी। और जो यंग होते थे उन्हें वॉरियर कहा जाता था। तो इनके अंदर जो है अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनमें बांटी गई थी। जैसे जो एल्डर हैं उनको कई तरह के जो सेटलमेंट्स होते थे या कई जगह के जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेस्ड ऑन पे उनको सारे डिसीजन करने होते थे। किस तरह का कोई झगड़ा है या कोई चीज़ है तो वो सारी चीज़ों को सेटल करना होता था। तो कई तरह के नए जो जजमेंट लेने हैं वो भी यही लिया करते थे। जो यंग वंस होते थे उनका बेसिक काम होता था अपनी ट्राइब की रक्षा करना सारी चीज़ों से, या किसी का हमला हो या किसी जानवर का हमला हो या कोई भी चीज़ हो, तो ये सारे काम जो है वो ये किया करते थे। अब देखिए यहाँ पे जो है उनकी एक इमेज दिखाई गई है। इस इमेज में उनका पहनावा, रहन सहन, ओढ़ावा, किस तरह का फेस होता है, किस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई हैं। ये पैराग्राफ जो है आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इट्स एन वेरी इजी थिंग। आपको इसे पढ़ के जो भी चीज़ें हैं समझ में आ जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ वी सी द कंक्लूजन। अब कंक्लूजन जो है वो मेन चीज़ें हैं कि मतलब इस तरह की लाइफ अगर इनकी थी तो किस तरह की प्रॉब्लम इन्होंने फेस की, क्या किया। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है तो हमने एक चीज़ देखी है, जो भी इनकी पहली लाइफ थी वो कैसी थी, अच्छी थी। जो भी ये फॉरेस्ट लाइफ में रह पाते थे और इसके साथ साथ जो है हिली रीजन जो है जहाँ पे रहते थे वो भी इनके लिए अच्छा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे तब तक, और तब तक इनके लिए ये सारी चीज़ें अच्छी इसलिए भी थी क्योंकि कहीं ना कहीं लकड़ियों का ये एज अ फ्यूल यूज़ करते थे। ये कहीं भी जो ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं पे भी रह रहे हैं तो उनके लिए ये सिलेंडर और ये सारी चीज़ें लेके नहीं चल सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत अच्छी थी। पर ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक तब हुई जब कहीं रहने के लिए इनको परमिट लेना पड़ा। जो भी फॉरेस्ट एरिया वहाँ के कुछ पोर्शंस को रिज़र्व कर दिया गया, तो ये सारी चीज़ें इनके लिए दिक्कत वाली काम हो गई थी और इस तरह से उनका रह पाना और आराम से जी पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। क्योंकि देखिए अगर फॉरेस्ट में रहते हैं वहाँ पे कुछ एरिया जब रिज़र्व कर दिया गया तो एक पर्टिकुलर एरिया पे ये पास्चर कब तक पाएंगे अपने एनिमल्स के लिए। अगर इनके खाने की कोई चीज़ें हैं जो कि इन्हें जंगल से मिलती थी, अब क्योंकि रिज़र्व हो जाने की वजह से भी वहाँ पे जाके ट्रैवल करके उस चीज़ों को पा नहीं सकते, खा नहीं सकते, ले नहीं सकते। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ जो है अफेक्ट हुई थी और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था इनके लिए। तो जो पहले जिस तरह से लाइफ इनकी चल रही थी या जिस तरह की चीज़ें जो इनके साथ हो रही थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो ये जो थे ये मॉडर्न वर्ल्ड में इनकी कोई जगह नहीं थी। जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे वो पुराना जो था वही ठीक था जो कि इनके लिए परफेक्टली सूटेड था। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी हैं और महसूस की हैं। आई होप ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर द डे।